वो ये केस का पहले सेम ड्रग को हम लोग दे चुका था। अनफॉर्चुनेटली द 6th केस में ये रिएक्शन हुआ है। ये इंसिडेंट सर्जरी में हुआ है, तो चाइल्ड्स डिपार्टमेंट का वो एक जेआर अपना पेशेंट को देखने के लिए वहाँ पे गया है वार्ड में जाके पेशेंट को देख के हाथ धोने के लिए निकला है। वहाँ में देख के तब पीछे से आके कोई अनजान आदमी, स्ट्रेंजर with whom he had absolutely no interaction, whom he doesn't know at all, वो आके पीछे से दुमदाम मतलब एक बड़ा रोड से आपने अगर देखा है तो फेसबुक सोशल मीडिया में भी देखा होगा, इतना पीता है कि वो रोड बेंड होने तक पीता है। ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी जो हमारे जेआर का हुआ है, जो बाहर तेलंगाना से है, बेचारा पेरेंट्स को अभी हम लोग कैसा बताएंगे, इतना तक मारा है कि हड्डी तक टूटा दिया। इम्प्रूव आवर attitude, improve our communication skills so that we do not appear as criminal or as monsters that we are being portrayed in the public social media as of now. कल का तो we are very very sorry that we could not allow you yesterday for two main reasons. As an administrator हम लोग तो कभी भी हॉस्पिटल बंद करो हम लोग तो कभी साथ में नहीं दिया है और देगा भी नहीं है. To inform about yesterday's incident wherein two of our sincere health professionals were physically assaulted by the patient attendant. We were very much aware that such negative sentiments were brewing in the public, in the various social media, various social forums, but we did not anticipate such kind of assault on the frontline healthcare workers. Therefore, we have invited today all of you to share our side of the story. Yesterday, for no reason, no fault of theirs, one senior resident and one junior resident from the Department of Pediatrics were assaulted. One sustained grievous injury. And let me reiterate for a fact, one of the junior resident who was assaulted was a non-localite. He had come to do his residency, that is DNB residency in pediatrics, all the way from Telangana. So it was very, very sad and gave us deep anguish and demoralized all the working staff, including the doctors, nurses, and all other allied health professional workers in the hospital. Now regarding yesterday, some of the media houses आप लोग ने बताया है कि आप लोग गुस्से में हैं, आप लोग हम लोग का ट्रिम्स अथॉरिटी और फैकल्टी से कि आपने हम लोग कल why we did not allow you yesterday to basically highlight the incident at TRIMS. Let me reiterate, we are very appreciative of your effort. In fact, the very fact that we have called you is to seek your help. You being the fourth pillar of democracy, we need your support, we need your guidance. A lot of negativity has come into the social media. And we are not even sure how it started because we were thinking we are doing good things for our state. Therefore, we request and ask your help in bridging that trust deficit that has happened. Like I said, it may be because हम लोग का गलती से भी हो सकता है. It may be because of some bad elements in the society जो social media में रह के हम लोग का negative effect हुआ है. But from the social media हम लोग को ये तो पता चलता है कि a huge trust deficit has occurred between the public and between the healthcare workers at TRIMS. And therefore, it is very pertinent, I reiterate again and again, we all at TRIMS administration request your support in bridging that gap so that the people of Arunachal Pradesh, the poor, sick, needy people of Arunachal Pradesh start to have faith in the medical system, start to have faith in the healthcare delivery services that is prevailing at TRIMS. Kal ka to we are very, very sorry that we could not allow you yesterday for two main reasons. एक तो ये था कि
We were actually literally scared. 2 अटैक हुआ है तो हम लोग ने सोचा है कि और भी अटैक आ सकता है, तो वी वांटेड टू स्टे टुगेदर, एक जगह में हम लोग बैठ के प्रोटेक्ट, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम लोग, आप लोग तो कोई तो बोलेंगे कि हम प्रेस वाले हैं, लेकिन हम लोग को तो पता भी नहीं होता कौन प्रेस वाले हैं। कभी कभी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन सच अ टेंस सिचुएशन टू फाइंड आउट और टू नो कि कौन प्रेस वाले हैं, कौन नॉन प्रेस वाले हैं। एंड दैट वाज अ रीजन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स from the further physical assault by the public or by so-called the patient, जो हम लोग से गुस्से हैं। इसलिए we had to refrain the press and the media to come inside the hospital campus, and we are very sorry for that. And number 2, our doctors, especially the junior doctors who are the frontline workers, were very agitated, understandably so. They were very emotional. तो therefore हम लोग सोचा है कि अगर आप लोग आएंगे तो हमारे कोई डॉक्टर शायद कोई इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दे देंगे, कोई इनअप्रोप्रिएट बात बोलेंगे आप लोग को, दैट वुड फर्दर टर्निश द इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो ऑलरेडी लाइक आई सेड ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी बन चुका है। तो therefore we did not want that situation to flare up and further tarnish the image of TRIMS. इसी 2 रीजंस का वजह से we did not ask you, or rather allow you to come inside and cover the incident that happened, the unfortunate incident that happened yesterday. Before I complete the press statement, once again I would like all of you to know the very fact that we need your support. इतना negative sentiment हो चुका है public पे। It is your responsibility, my responsibility, our responsibility. It's a collective responsibility of everyone to breach that trust deficit. ऐसा माहौल create करना चाहिए। आप लोग भी थोड़ा responsible होना पड़ेगा। You are very responsible. I'm not saying anything, but increase your responsibility to remove the negative sentiment, negative feedback that has crept into the minds of the public. And we assure you as TRIMS faculties, as TRIMS administration, कि we are doing our level best, to the best of our capacity, skill and knowledge, to provide the kind of services that is appropriate, the kind of services that is expected of us. And we will continue to do so despite all the trouble, despite all the negative sentiments that we have, that is already brewing up in the public forum. Coming to our local incident that happened in SEPA, we had in fact reviewed the security situation. We have, in fact, after that very incident, we have set up the police outpost, which is, you may have seen, just outside the emergency and the trauma department. And at the same time, we also have security personnel. We have outsourced the security to one outside agency, and we have about 70 security personnel, private security personnel. But I say 70 is very, very less for providing security within the hospital and within the premises of TRIMS, because 70 sunne mein bada hai 70, but 70 to they cannot be employed all the time. They have to be in shift. At the maximum that we can do is 3 shifts. तो just imagine करो कि आप गेट भी हमारे पास थोड़ा 4-5 है, हर गेट में डालने से हो जाता है। वार्ड हमारे पास इतना ज़्यादा वार्ड्स है, OPDs है, OTs है, ICUs है, SNCU है, ICCU है, एकेडमिक ब्लॉक, ये तो हॉस्पिटल का सिर्फ है। We have the academic block, director's office, we have the lecture halls. So basically, yes, we have already asked and placed in front of the government of Arunachal Pradesh to provide us more security personnel. Yes, the file is on the way, and we will intimate to you when, and we have, on priority basis, we have asked the government to increase, to give us another 80, so totally we have at least 150 security personnel. For the trust deficit that have occurred, it is, we cannot blame only the other side of the people. Probably the fault also may lie with us. So therefore, we will introspect. In fact, as a DMS, I had called a meeting 2 days back to try to imbibe this ethical principles on the HODs and various faculties. But because of this unfortunate incident, that meeting had to be cancelled. And within the coming days,
we will ask all the departmental HODs, all the faculties, all the nursing staffs and the nursing superintendents to introspect and improve our attitude, improve our communication skills so that we do not appear as criminal or as monsters that we are being portrayed in the public social media as of now. Yes, we are very much aware कि हमारे पास डिफिशिएंसी तो ज़रूर है, जैसा कि आपने बोला है, आपने बताया है कि so much of line है. Ultimately it boils down to manpower. हमारे पास इनफैक्ट कल हमारे पास मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी हेल्थ भी था, तो व्हेन वी उसमें इनफैक्ट सेक्रेटरी डिस्कशन के बाद सेक्रेटरी साहब ने भी यही भी बोला है कि आप लोग इतना बेड 500 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे, हमारे पास हार्डली 200 नर्सेस हैं जो वर्किंग नर्सेस, तो इट्स नॉट पॉसिबल. और हर नर्स जैसा कि आपको बताया है वो तो 8 आवर शिफ्ट में होंगे, तो यानी कि अगर 200 में होने से डिवाइडेड बाय 3 वी हैव हार्डली 60-70 at any point in time. 60-70 nurses to run ICUs, to run SNCU, to run ICCU, to run the wards, at the same time look after the OPDs. It is very, very difficult. Therefore, in fact, a directive they have been unofficial, they have told us to basically downsize the number of beds that we are operating. So from 500, most probably we don't have a choice unless we are provided with the adequate manpower, that is a nursing staff. It would be we would be downsizing to a minimum about maybe 300 or maybe 290. Dr. Rekha Raju, he is the faculty from the Department of Surgery, where the background story happened. Let him narrate the background story, and thereafter the yesterday's event I shall tell you. पेशेंट था 17 years old, फीमेल पेशेंट है, तो 19 अगस्त को ओपीडी में आया, तो ओपीडी में कुछ कंप्लेंट लेके आया, तो कंप्लेंट था कि पेरिएनल स्वेलिंग, ये तो पेरिएनल रीजन में एक स्वेलिंग है, तो उसको क्या कि यूजुअली वैसा स्वेलिंग होने से फिर उसको हम लोग प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिन दैट पार्ट. ऑन एग्जामिनेशन तो हम लोग को मिला कि एक एनल टैग जिसको हम लोग सेंटिनल पाइल बोलते हैं, तो सेंटिनल पाइल तो वी डिवाइड करते कि 6 o'clock 12 o'clock ऐसे डिवाइड होना, तो 12 o'clock में तो पीछे साइड, तो 12 o'clock में था, तो उसको ऐसा था कि वो देखने में ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उसको हमने क्या किया कि वो एडवाइस पेशेंट को कि 2 ऑप्शन दें, एक तो आप सर्जिकल कर सकते हैं या बिना सर्जरी का भी आप दवाई ले सकते हैं. तो छोटा चीज़ होने से क्या होता है, हम दवाई से यूजुअली पहले ट्राई करते हैं, तो लेकिन पेशेंट पार्टी दे ऑप्टेड के नहीं सर इसको आप सर्जरी ही करा दो तो वही बेस्ट रहेगा. सो फिर क्या कि उसको हमने तो व्हेनेवर पेशेंट ऑप्ट फॉर सर्जरी तो हम उसको एक ऑपरेशन का डेट देते हैं, ऑपरेशन डेट देते हैं, डेट ऑफ एडमिशन. तो पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन था 28 अगस्त को, तो 28 अगस्त को करना था. सो उसको हमने पूरा रूटीन इन्वेस्टिगेशन भेज दिया, मतलब ऑपरेशन से पहले क्या क्या टेस्ट जरूरी होता है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सब कुछ भेजा. उसके बाद सिंस 28 को था तो हमने क्या किया, थोड़ा एडवांस में उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप करा लिया. तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप हो कि बेहोश करने से पहले जो चेकअप हो रहा है. सो 25 को उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप हुआ एंड शी वॉज फिट फॉर सर्जरी. फिर उसके बाद पेशेंट को आना था 27 को, बिकॉज एक दिन प्रायर हम पेशेंट को एडमिशन करते हैं, 28 को डेट था तो 27 को एडमिट करना था, बट पेशेंट डिडंट कम. तो पेशेंट आया 28 का ऑन द डे ऑफ सर्जरी, सुबह आया. तो हमने क्या किया, सिंस पीएससी तो हो चुका था लेकिन सिंस ओटी लिस्ट में नहीं था, बिकॉज ऑपरेशन लिस्ट में डालना होता है, उसके हिसाब से सिस्टर्स लोग अपना सामान रेडी करते हैं, तो ऑपरेशन में लिस्ट नहीं था तो उसको हमने कैंसिल करवाया. फिर एक नया डेट दिया, तो नया डेट दिया 4 तारीख का, तो शी वॉज टू कम ऑन 4 तारीख का. वो भी सिंस उसका पीएससी हो चुका था तो उसको 4 तारीख को सुबह आराम से आना था एडमिट कराने के. तो लेकिन पेशेंट 4 तारीख का ऑपरेशन डेट था, 3 तारीख को आना था, तो 3 तारीख का सुबह यूजुअली हम 10 बजे बुला रहे थे पेशेंट को, तो 10 बजे पेशेंट नहीं आया, केम अराउंड शाम का 6:30 को आया 3 तारीख को. तो यूजुअली बोलने से वो टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन डेट भी ओटी लिस्ट बनाना होता है, तो ओटी लिस्ट के हिसाब से ओटी लिस्ट ओटी में देगा, फिर सिस्टर विल अरेंज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स नेसेसरी. फिर हमने सोचा चलो
कैंसिल वाला केस है, सो हमने ओटी लिस्ट में डाल दिया। फिर पेशेंट वॉज प्लान ऑन 4 तारीख को, फिर उसको ऑपरेशन रूम पे लेके गया। तो वो ऑपरेशन वाज टू बी डन अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया। तो स्पाइनल जब भी कुछ चीज़ जनरल एनेस्थेसिया में या स्पाइनल एनेस्थेसिया भी कॉल इट एज मेजर सर्जरी, क्योंकि अंडर स्पाइनल में हो रहा है। अंडर स्पाइनल में बहुत पेनफुल रहता है एरिया में, तो उसको अंडर स्पाइनल में लिया। फिर ऑपरेशन ज़्यादा देर नहीं तक 20 to 30 मिनट्स जो सर्जरी था। फिर उसको ऑपरेशन करने के बाद हमने सामने में एनेस्थेटिक का रूम है, एनेस्थेसिया का रूम वो है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन रूम। तो सीधा ऑपरेशन करने के बाद हम पेशेंट को वार्ड लेके नहीं जाता, उसमें 10-15 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। तो ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर वी हैड रिव्यू विद एनेस्थेसिया, फिर हमने देखा एनेस्थेटिक देखा, फिर उसके बाद जैसे ओके फिर हमने उसको वार्ड में शिफ्ट करा। तो पेशेंट शिफ्टेड टू वार्ड अराउंड 2:20 आफ्टरनून का, जब 2:20 PM को शिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद 2:20 को PM को शिफ्ट हुआ, होने के बाद अराउंड 2:25 क्या हमारे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, तो उसने एक इंजेक्शन दिया। तो इंजेक्शन वाज यूज टू गिव बोलस इन स्टेट, मतलब स्टेट मतलब एक ही टाइम, वन टाइम के लिए ही एडवाइस था। तो इंजेक्शन का आई थिंक सबको पता चल गया होगा। इंजेक्शन वाज ट्रेनेक्सामिक एसिड। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड 1 ग्राम IV स्टेट डोज देना था, तो मतलब एक टाइम के लिए देना था। तो उसको दिया, तो देने के बाद जैसे इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा डॉक्टर ऑन ड्यूटी थोड़ा इस तरफ दूसरे को देखने गया, तो अटेंडेंट आके बोला कि सर आके देखिए, पेशेंट थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। तो उसको अटेंड किया, एंड लकीली एट दैट टाइम वी वर ऑल देयर एट दैट टाइम जब शुरू हो रहा था। तो वाइटल्स वगैरह चेक किया, BP फॉल हो रहा था, पल्स कम होने लगा था, प्यूपिल ज़्यादा रिएक्शन में था। तो विथ फाउंड दैट इट वाज एन एनाफाइलेक्सिस, जो उसका रिएक्शन है। तो हमने जो नेसेसरी उस टाइम पे जो तो आई थिंक ज़्यादा टाइम भी 2-3 मिनट्स ही हुआ कि हमने ऑक्सीजन लगाना शुरू किया, वी गेव ऑल द नेसेसरी थिंग्स जो उस समय पे करना था किया। फिर वी कॉल द एनेस्थेसिया, यूजुअली क्योंकि पोस्ट एनेस्थेटिक है, सो in that case, so we called the anesthesia. Anesthesia came around within 5 minutes from the OT, क्योंकि ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग बहुत दूर है, OT से आना और यहाँ से आना। तो we called the anesthesia. There are, or we are thankful to the anesthetic department कि they came in time. Around within 5 minutes they came, they intubated the patient. यहाँ से पाइप लगाया, क्योंकि ऐसे टाइम पे खुद से सांस लेने में तकलीफ होती है, तो पाइप लगाया, इंट्यूबेट किया। उसके बाद वहाँ पे जो नेसेसरी चीज़ें सलाइन वलाइन लगाना, कैनुला एक्स्ट्रा लगाना वो किया। उसके बाद पेशेंट वाज शिफ्टेड टू ICU। तो ICU में पेशेंट इंट्यूबेट करने के बाद ICU में पेशेंट को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद ऑन द इन द ICU आफ्टर इंट्यूबेशन वाइटल्स हमने देखा, वाइटल्स सब विद इन नॉर्मल रेंज में था, बट इतना पेशेंट इतना भी नहीं था कि उसको इमीडिएटली एक्सट्यूबेट करता है। सो अंदर ओवरनाइट पेशेंट को हम एक्सट्यूबेट करके रखना पड़ा इन द ICU बाय द हेल्प ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। सो ऑन द नेक्स्ट डे 5 तारीख को अराउंड 9:40 AM में, सो सब कुछ देखने के बाद फिर एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि विल एक्सट्यूबेट, अभी चलो हो गया, अभी टाइम है कि पाइप को निकाल देना। तो पेशेंट वाज रेस्पॉन्ड कर रहा था, तो पाइप को निकाल दिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पेशेंट को कुछ फ्लूइड्स वगैरह कुछ थोड़ा अलाउ किया। फिर वी ऑब्जर्व करने के बाद फिर कार्डियोलॉजिस्ट आया, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डिपार्टमेंट आया, फिर न्यूरोलॉजिस्ट आया। सो वी कॉल ऑल द, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, एनेस्थेटिक, आई डिपार्टमेंट एंड टू द न्यूरोलॉजिस्ट। सो सब ने आया, सब असेस किया। सो कार्डियो में भी कार्डियो वाले ने कुछ इको वगैरह किया, उसमें कुछ डिजीज मिला, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन चलाया। फिर आई वाले उस टाइम पे आया। सो एट दैट टाइम पेशेंट डिडंट हैव एनी कंप्लेंट ऑफ विद आई प्रॉब्लम। तो न्यूरोलॉजिस्ट का हमने बुलाया, फिर जो मेडिकेशन जरूरी था वो शुरू किया है। फिर उसके बाद ऑन द डे ऑफ 8 तारीख को, जो क्योंकि बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल एवरी डिटेल, आज सबको इंसिडेंट को पता हो ही गया। तो ऑन द डे ऑफ 8 तारीख को फिर क्या हुआ, पेशेंट कंप्लेन की दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसमें भी हमने फिर आवर टीम कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, आई, दे वर ऑल मॉनिटरिंग, हर दिन विजिट करा।
फिर हमने लेकिन न्यूरो को फिर दोबारा बुलाया, न्यूरो मैडम भी आया, फिर मैम भी देखा, फिर आई वाला भी देखा, फिर बोला कि उस टाइम पे स्पेसिफिक कुछ ऑब्वियस कोज तो दिख नहीं रहा है। तो लेकिन फिर न्यूरो वाले भी बोला, न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो करना है, बट एट दैट टाइम तो वो इन्वेस्टिगेशन ऐसे कि पेशेंट को थोड़ा मोबिलाइज नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमने बाकी जितना ज़रूरत इन्वेस्टिगेशन हो सब किया है, बट एट दैट टाइम जो थोड़ा बात नहीं कर सकता था आफ्टर द पेशेंट गेट स्टेबल, तो उसको हम अभी तक थोड़ा रोक के रखा है आफ्टर पेशेंट फुल्ली रिकवर होने। सो अंटिल नाउ द पेशेंट इज स्टिल रिकवरिंग एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो जो कुछ टेस्ट करना था, एंड वी आर फर्दर विल डू द टेस्ट बट once the patient is stable. And regarding the drug reaction, we have already जो डिपार्टमेंट वाला जो कंसर्न डिपार्टमेंट है तो हमने इन्फॉर्म किया है, मैडम को भी इन्फॉर्म किया during the part, and एडमिनिस्ट्रेशन भी नाकाम कर रहे हैं। So regarding this thing, the case जो डॉक्टर राजू ने आपको बता ही दिया है regarding the possible anaphylactic reaction, तो उसके बाद करते ही नेक्स्ट दिन ऑन 5th को वी हैड ऑलरेडी रिपोर्टेड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग जितना भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन या कॉम्प्लिकेशंस या एनाफिलैक्सिस हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है, रिपोर्ट कर चुका है ड्यू प्रोसेस। एंड वो सेम बैच का जो मेडिसिन है, मेडिसिन का एक बैच में आता है, वही मेडिसिन को सेम बैच वाला हम लोग को वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड the pharmacy जहाँ से लिया है to basically stop issuing, seal it and then hand it over to the CMS office ताकि we can do the further investigations. And moreover from what I hear, वही दिन ऑपरेशन में हमारे तो दिन में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, around I think that day we did around 12 operations that day, and ये वाला ऑपरेशन was the 6th case जिसमें वही सेम मेडिसिन को दिया गया था, 6th केस था। तो उसके पहले 5 केस को भी वी हैड गिवन द सेम इंजेक्शन ट्रानेक्सामिक एसिड विच इज़ गिवन रूटीनली यूज्ड वेरी ऑफन बाय डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एज वेल एज द डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। तो देयरफॉर दिस लाइक जैसा कि हमने रीइटरेट अगेन 5 केसेस, ये केस का पहले सेम ड्रग को हम लोग दे चुका था। अनफॉर्चुनेटली द 6th केस में ये रिएक्शन हुआ है, लेकिन आफ्टर दैट वी हैव stopped using that batch and we have sealed the drugs. कितना लोगों को चोट लगा कल का घटना? Yes, now it's okay. Now coming to the that was the background. Now coming to what happened yesterday. So yesterday there was a very deeply anguishing event. तो ठीक है, हम अपने ऑफिस में था, ये सामने में ही है DMS का ऑफिस और आगे में CMS ऑफिस है। लकीली अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे CMS ऑफिस में हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे CMS साहब और OC ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दी नाहरलगुन पुलिस थाना भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अराउंड 10:30 ना 11 o'clock, आई एम नॉट श्योर ऑफ द टाइम, हम लोग को वहाँ से फ्रेंटिकली एक नर्स ने कॉल आया कि वहाँ में एक वार्ड में प्रॉब्लम हो रहा है। तो वी ऑल रन डाउन। बाय द टाइम इंसिडेंट हो चुका था, लेकिन ओसी साहब एंड हिज टीम वर ऑलरेडी एट द स्पॉट एंड इमीडिएटली द असाइलेंट वाज एप्रीहेंडेड विद इन 5 or 10 minutes ऑफ द इंसिडेंट। तो ऑन इंक्वायरी हम लोग अपना डॉक्टर को पूछा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तब बताया है कि हमारा जैसा कि पहले भी हम बोल चुका है, एक सीनियर रेसिडेंट और एक जूनियर रेसिडेंट वेर असॉल्टेड। एक जूनियर रेसिडेंट DNB का डिप्लोमा, जो DNB जो रेसिडेंसी कर रहा है, वो अलग पेशेंट के लिए, वो ये पेशेंट के साथ रिलेटेड भी नहीं है, कभी उसको पेशेंट को जानता भी नहीं, देखा भी नहीं है, डिपार्टमेंट भी अलग है। तो वो जाके अपना कोई पेशेंट ही, वो पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स का JR है। ये इंसिडेंट हुआ पीडियाट्रिक्स यानी कि चाइल्ड ना, बच्चा लोग जो देखते हैं, ये इंसिडेंट सर्जरी में हुआ है। तो चाइल्ड्स डिपार्टमेंट का वो एक JR अपना पेशेंट को देखने के लिए वहाँ पे गया है वार्ड में जाके पेशेंट को देख के हाथ धोने के लिए निकला है, वहाँ में देख के तब पीछे से आके कोई अनजान आदमी, स्ट्रेंजर
with whom he had absolutely no interaction, whom he doesn't know at all, वो आके पीछे से दुमदाम मतलब एक बड़ा रोड से, आपने अगर देखा है तो फेसबुक सोशल मीडिया में भी देखा होगा, इतना पीता है कि वो रोड बेंड होने तक पीता है। तब पीते समय हमारे सीनियर रेसिडेंट है, वो हमारे ही लोकल है, निशी ही डॉक्टर ही है, वो सीनियर रेसिडेंट है। सीनियर रेसिडेंट यानी कि जो एमडी ख़त्म करने के बाद जूनियर रेसिडेंट जो है स्पेशलिस्ट करने वाले, सीनियर रेसिडेंट मतलब स्पेशलिस्ट जो ख़त्म किया हुआ है। तो जो सीनियर रेसिडेंट उसको देख के वो बचाने के लिए गया है, तो बचाने के लिए गया है तो वो रोड का जो शार्प एज है ना, उसने उसको वेरी, आपने फेसबुक में देखा ही होगा या दूसरा सोशल मीडिया में देखा ही होगा, वेरी डीप लैसरेशन उसका फोरआर्म में मिला है। उसके बाद जो बताया गया है वो भी भाग गया है। तब भी इट सीम्स ही वाज, वो तो नीचे में गिरा दिया, तो उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली मारते जा रहा था। बाय दैट टाइम आई थिंक हम लोग का लकीली, जैसा कि हम बोला ओसी और वो था, वो लोग आके हम लोग उसको डिफ्यूज़ कर सका है। बट बिफोर डिफ्यूजिंग ऑलरेडी ग्रीवियस इंजरी तो कर चुका था। डॉक्टर टाम साहब जो जामा सीनियर रेसिडेंट का तो डीप लैसरेशन देखा ही है। इट टुक अराउंड मोर देन 10 to 15 स्टिचेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी जो हमारे जेआर का हुआ है, जो बाहर तेलंगाना से है। बेचारा पेरेंट्स को अभी हम लोग कैसा बताएंगे कि अपना बच्चा वो लोग हम लोग का अंदर में बेचता है, टू गिव देम एजुकेशन अंडर आवर प्रोटेक्शन, लेकिन उसका इतना तक मारा है कि हड्डी तक टूटा दिया। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवेंट फॉर अस नाउ कि वो पेरेंट बाहर से जो तेलंगाना इतना दूर से आया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे वाला साइड ऑफ द स्टोरी को भी आप थोड़ा ह्यूमेन टच से लेके आप इसको मतलब पब्लिक को पहुंचाना चाहिए। ये जो वेपन है वो कहाँ बाहर से लेके आए थे? फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसका जो इंक्वायरी जो हम लोग ने थोड़ा मोड़ा इंटरनल इंक्वायरी किया है, वो वेपन बाहर से नहीं आया है। वो वेपन अंदर का ही था। हम लोग का जो बेड नहीं होता, मैट्रेस जो पेशेंट का बेड होता है, उसमें नीचे में एक रोड होता है, वो कहीं पे रखा हुआ था या लाइंग था, तो उसको लेके मारा है। दैट इज इट सीम्स लाइक दैट। सो ये कि बाहर से लाया वाला वेपन नहीं है। Still in recovering mode. उनका पेरेंट्स की तरफ से हमें फोन को लगा था, they were supposed to give briefing last night, तो आया नहीं है। बाद में कुछ कारण से उन्होंने तो उन्होंने बोल रहे हैं कि कोमा में नहीं। So ऐसा है, that's why मतलब इसलिए अच्छा हुआ आपने पूछा। So I forgot to add something. So yesterday we came और yesterday फिर हमने आईसीयू में एक्चुअली we सोच रहे थे कि हम आईसीयू से शिफ्ट कर देंगे उसको, ताकि एक ऐसा भी होता है कि आईसीयू में जब आप रहते हैं, और आई थिंक कोविड के टाइम पे सबको पता होगा रूम पे रहना क्या होता है। सो कोविड आईसीयू का भी एक ऐसा रहता है जिसको हम आईसीयू साइकोसिस बोलते हैं। तो फिर आप एक बंद कमरे में रहोगे, फिर ना धूप ना रोशनी ना क्या, बस वही लाइट और वही आईसीयू में क्या रहता है, पेशेंट सब सीरियस रहता है, पाइप लगा हुआ ही रहता है, वेंटिलेटर में रहता है, साइड का कब क्या हो जाएगा पता नहीं रहता। तो जिसके वजह से आईसीयू साइकोसिस रहता है, एक दिमाग में बना रहता है क्या कभी ठीक नहीं होगी। तो उसके वजह से यस्टरडे इसलिए हम गए, तो मेरे साथ मेरे सीनियर डॉक्टर्स भी गए, हमारे एचओडी सर के साथ भी गए। तो जाके हम सोचे कि चलो थोड़ा आईसीयू से बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल कर थोड़ा हवा खाएगा, किसी से मिलेगा, घुल मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने अटेंडेंस से बात किया, तो आई थिंक दे वर रिलक्टेंट। तो उनको क्या लगा कि मतलब रिगार्डिंग इन रिलेशन विद द यस्टरडेज इंसिडेंट कि हम उसको आईसीयू से बाहर निकाल रहे हैं। हमने उनको समझा कि ऐसे बात नहीं है, अब जो हो गया हो गया, अब उसको लेकर आप आपके पेशेंट का हम क्यों उठाएं, हम भी तो चाहते जल्दी ठीक हो जाओ, घर जाओ, हमारा भी तो हल्का होगा ना। तो वही सोचकर हम सोचे बाहर जाकर थोड़ा ये आईसीयू से निकालने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल वीकनेस तो है थोड़ा, बट लेकिन पेशेंट रिकवरिंग है। तो बाकी जो जैसे पहले बताया कुछ टेस्ट है जिसको अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट अच्छे से रिकवर हो। तो इसलिए हम थोड़ा बाहर केबिन में शिफ्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, बट पेशेंट पार्टी रिलक्टेंट है, सो अभी तक हमने नहीं किया।
दवाई के बारे में बताता हूँ कि हमने क्यों इंजेक्शन दिया वो इंजेक्शन। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड क्या होता है कि वो जब हम इंजेक्शन देते हैं तो कुछ कुछ कभी कभी कुछ पार्ट्स ऐसे रह जाते हैं जिसको हम पूरी तरह सिलाई नहीं कर पाते। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पार्ट्स है, ऊज बोलते हैं जिसको, थोड़ा दबा के रखा फिर जो थोड़ा सा ब्लड निकलता ब्लड है। निकल रहा है, तो उस पार्ट में हम क्या करते हैं, ट्रेनेक्सामिक एसिड देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ट्रॉमा प्रोटोकॉल और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी, तो ऐसे है कि जब अगर हम इंजेक्शन को कंटिन्यूस देने से तो हम डोज कम करते हैं, लेकिन अगर हम वन स्टेट दे रहे हैं तो विदिन 8 आवर्स, ट्रॉमा का भी है नियम है ATLS जो होता है, तो विदिन 8 आवर्स आप ट्रेनोस्टेट काम आता है। सो उस पेशेंट का भी ऐसा है कि पोस्ट ऑपरेटिव ट्रेनेक्सामिक एसिड 1 ग्राम स्टेट देना था, एक बात है। तो ऐसे है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पाइल्स जो होता है, तो कमिंग टू दिस पेशेंट, टू दैट पेशेंट, तो उसका भी ऐसा ही था कि बाहर से दिखता छोटा है, क्योंकि जो हम एनल स्फिंक्टर बोलते हैं, जिस जहाँ से हम हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, कब जाना है कब नहीं जाना है, तो उस चीज़ को क्या मसल कंटेन करता है। लो जब हम स्पाइनल देते हैं, तो स्पाइनल देने से क्या होता है, सब रिलैक्स हो जाता है, आपका सब ब्लैडर से सब रिलैक्स हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ वो चीज़ भी रिलैक्स हो जाती है। तो रिलैक्स होने से क्या होता है, कभी कभी अंदर हिडन रहता है, तो हिडन रहने से फिर बल्ज होकर बाहर आता है। तो उनका ऐसा था कि थोड़ा सा था, बाहर से दिखने में छोटा था, लेकिन जब एनेस्थीसिया रिलैक्स हो जाता तब थोड़ा ज़्यादा बल्ज है। सो रिगार्डिंग दैट, तो हमने क्या क्या किया कि स्टेट चलो एक 1 ग्राम स्टेट ऐसे नहीं कि कंटिन्यू करना है। तो रिगार्डिंग थोड़ा सा ऊज हो सकता है, और वैसे भी उसे उस ऑपरेशन में करने के बाद थोड़ा सा कुछ कॉटन वॉटन लगा कर रख देते हैं कंप्रेशन करने की। सो रिगार्डिंग दैट तो हमने इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड लिया। तो जहाँ हमें लगता है कि मतलब थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है ऑपरेशन के बाद, तो वहाँ हम इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड दे देते हैं। I'm नवम याहिन। हाँ, मेरा नाम है नवम याहिन और हम फार्मेसी प्रोफेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और मैंने एम.फार्म इन फार्माकोलॉजी एंड OTT कंट्रोल, और इंट्रेंस आई एम वर्किंग एज ए डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया AMC एडवांस ड्रग्स रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग सेंटर। तो रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ADR एडवांस ड्रग्स रिएक्शन रिपोर्टिंग सेंटर में फार्माकोविजिलेंस का क्या है, मैं थोड़ा सा आपका जरिए मैं मैसेज पास करना चाहती हूँ। At the very beginning, 4th of September this month, when this incident occurred, जब ये रिएक्शन जो occur हुआ था, डॉक्टर जादे सर्जन डिपार्टमेंट को हमको मैसेज कॉल करके हमको रिपोर्ट किया था और टेक्स्ट भी किया था कि मैडम ये एडवांस ड्रग्स रिएक्शन हुआ है, आप कलेक्ट कर लो बोलते। तो एट द मोमेंट हमका डिपार्टमेंट से टीम जाके उसको कलेक्ट किया और हम रिपोर्टिंग भी कर दिया। और ये एडवांस ड्रग्स रिएक्शन क्या होता है, हम आपको थोड़ा सा बताएगा कि रिएक्शन जो हम क्या क्या चीज़ को रिपोर्टिंग, एडवांस ड्रग्स रिएक्शन जो क्या होता है, रिएक्शन जो है कि एडवांस रिएक्शन जो है कि आप जो भी मेडिसिन लेता है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल आपको आप हेडेक के लिए लेता है या फिर नहीं तो फीवर के लिए लेता है, लेकिन उसको ट्रीट नहीं करके जो डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाता है। फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल को लेने का बाद आपका पूरा बॉडी स्वेलिंग हो गया और आपका आई विजन पावर जो लॉस हो गया, या फिर आपको पूरा इचिंग रसेस, पूरा खुजली बदन लाल लाल हो गया, इसको बोलता है ड्रग्स रिएक्शन ना। तो ड्रग्स रिएक्शन क्या चीज़ है, उसको वो किसको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो क्या चीज़ को हमको रिपोर्ट करना है, हम आपको पूरा बताएगा उसको। और मैं ये आपका मीडिया का जरिए में जितने भी हम जो मेरा वॉइस को मीडिया ब्रीफिंग को सुन रहा है, मेरा हेल्थ केयर प्रोफेशन जितने भी अभी स्टेट में है, हमारा फार्मासिस्ट हो, नर्सेस हो, लैब टेक्नीशियन हो, और जितने भी डॉक्टर, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशन, आप लोगों से मैं इसका जरिए में आप लोग को मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। जो भी रिलेटेड रिपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन लाइक नॉन अननोन, सीरियस, नॉन सीरियस, लेवल एंड नॉन लेवल। नॉन क्या बोलता है, ऑलरेडी हमको पता है लेवल में, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल में फॉर एग्जांपल लिख के रखा है ऑलरेडी सैंपल में कि उसको वार्निंग बोलता है। वार्निंग आप लोग देखा होगा कि जब आप मेडिसिन से और जब आप ड्रग्स स्टोर से जब परचेस करते हैं, उस पर रेड कलर का एक वार्निंग लिख के रखा होता है ना, उस पर लिखा होता है कि आप ये मेडिसिन को खाने से हो सकता है बोलते हैं ना, तो उसको बोलता है नॉन।
आनोन बोलते हैं, उस पर लिख के नहीं रखा हुआ होता है, उसको आनोन बोलते हैं। आप खाने का बाद इस पे लिख के नहीं रखा है, आपको ओकर हो गया, उसको बोलता है नॉन। और सीरियस, सीरियस एग्जाम्पल बोलते हैं कि आपको वो मेडिसिन का को लेने के बाद में आपको टोटली आपका आई पावर जो आप लॉस हो गया और आपको लाइफ टाइम वो वापस नहीं आएगा और आपका किडनी फेलियर हो गया और पेशेंट जो डेथ हो गया, उसको बोलते हैं सीरियस केसेस। और नॉन सीरियस केसेस जो क्या है, आपको थोड़ा सा बस इचिंग हुआ है, रसेस हुआ है ना, थोड़ा सा उसको खाने का बाद में और हमको थोड़ा सा नाउजिया वोमिटिंग होता है, उसको बोलते हैं हम नॉन सीरियस। और ये सबको हमको रिपोर्टिंग करना है। और ऐसा है कि हम जो पब्लिक पेशेंट सोचते हैं कि हम जो अपना सेल्फ मेडिकेशन जो फार्मासिस्ट से खरीदता है और फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक जो हम लगाता है उसको रिएक्शन होने से हम रिपोर्टिंग नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना है, उसको भी रिपोर्टिंग करना। बिकॉज वी डोंट नो ना, उस पर आपको मैन्युफैक्चर में भी एडल्ट्रेट हो सकता है, हमको पता नहीं है ना, मॉलिक्यूल्स में भी या स्पूरस मेडिसिन हो सकता है, जो भी हो सकता है, उसको रिपोर्टिंग करना है। तो हम सोचता है कि हम पेशेंट जो सोचता है कि ना रिपोर्ट नहीं करना है ओके, तो जो क्या चीज़ हमको रिपोर्टिंग करना है उसको हम आपको बताया है। तो आपका एक रिपोर्टिंग का वजह से बहुत सारा पेशेंट जो बच सकता है। तो ये वेरी इंसिडेंट जो 4 तारीख को हुआ है उसका केसेस में हमको डॉक्टर जादे सर्जन डिपार्टमेंट से कॉल आया था और हमको वो ड्रग्स को भी मेडिसिन को भी हमको शेयर किया था। तो हम लोग तुरंत उस पर एक्ट किया और हम लोग रिपोर्टिंग किया। और हम लोग का एएनसी में हम लोग का एक प्रोसेस होता है कि हम लोग का एक अपना बीजी फ्लो होता है एएनसी में, एडवांस ड्रग, ये स्टेट में एएनसी एडवांस ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग सेंटर, ये एक ही है होल स्टेट में, उसको पब्लिक को शायद अवेयरनेस भी नहीं है क्या। और ये हम लोग जो है दिल्ली से WHO से हम लोग लिंक है। तो हम लोग का क्या है, एक बीजी फ्लो होता है, बीजी फ्लो। वो बीजी फ्लो वेबसाइट जो है हम लोग का, उस पर पासवर्ड होता है, ईमेल एड्रेस होता है और इसको हम लोग किसी को भी शेयर नहीं करता है। और इस ये जो हम लोग का सिक्योर ना, हम लोग का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग होता है। हम लोग उसको वो इंसान पर्सन जो जान सकता है कि ओनली द पर्सन हु इज ऑथोराइज टू ऑपरेट सच ए पोस्ट और चेयर ना, वो कंप्यूटर को जस्ट जो भी उसके डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया है वो ही इंसान जो, जैसे हम यहाँ में हम रिपोर्ट करता है तो हम ही आपका रिपोर्ट को जो केसेस रिएक्शन हुआ है वो कॉन्फिडेंशियल है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम लोग का बीजी फ्लो में जितना होता है हम उसको रिपोर्ट कर देता है, तो उसको हम लोग फर्दर दिल्ली में भेज देता है। दिल्ली में हम लोग का एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, वो जो ऑल इंडिया का जितने भी रिपोर्ट है हम लोग का दिल्ली में जाता है। तो उसको एक स्क्रीनिंग कमेटी होता है। तो वो स्क्रीनिंग कमेटी क्या होता है, जैसे कि सीरियस, सीवियर और रियर फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे निमोस्लाइड और बेन ड्रग्स है। फॉर एग्जाम्पल हम जो निमोस्लाइड खाया, खा के हम पेशेंट जो डायरेक्ट लिवर डैमेज हो गया और प्रोलॉन्ग मेडिकल हॉस्पिटलाइज है, तो वो केसेस को क्या करेंगे, हम लोग उसे भेज देता। तो ऐसा केसेस को इन लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करनी, तो वो लोग रिसर्च करता है, उस पर डिस्कस करता है कि इसको हम लोग फर्दर रिसर्च के लिए स्टेप लेना है क्या। तो क्या करते हैं इन लोग, जो उसको WHO भेज देता है। हम लोग का उधर हेड क्वार्टर है उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर में। तो WHO में इन लोग रिसर्च करके एक पीरियोडिकली 6 मंथ में हम लोग को एक न्यूज़ लेटर पब्लिश होता है। तो उस पर वन इंडिकेशन देता है कि ये साल में ये मेडिसिन को अप्रूव किया है, नया मेडिसिन हम लोग का इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है और ये मेडिसिन को हम लोग इसको वार्निंग दिया है, इसको सच केसेस में ये डिपार्टमेंट नहीं देना है ओके। हम लोग ऐसा ये करता रोल करता है, हम लोग का रोल है ये जो ADR का सेंटर में। तो ऑलरेडी ये मेडिसिन, ये जो रिएक्शन है रियर केसेस है ना, बहुत सी बार ऐसा बहुत सारा को देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। तो इसको हम लोग स्टडी केसेस के लिए हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो हम लोग ईमेल भी किया है हम लोग का हेड ऑफ द अथॉरिटी को, हम लोग का यहाँ में ऐसा रियर इतना साल में से ये रियर और सीरियस केसेस है करके, तो फादर हम लोग का हायर अथॉरिटी लोग अभी इसको रिसर्च पर्पस में और वो लोग की स्टेप छोड़ेंगे। हम समझता है ये पेशेंट का सेंटिमेंट और पब्लिक का सेंटिमेंट को हम समझता है। हम तो यहाँ पे आई एम हियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग तो कभी भी हॉस्पिटल बंद करो हम लोग तो कभी साथ में नहीं दिया है और देगा भी नहीं है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। बट दिस इज ये जो कंक्लूजन जो हुआ है, दैट इज द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ इट सीम्स 4 एसोसिएशंस, डॉक्टर एफिलिएटेड एसोसिएशंस, ट्रिम्स फैकल्टी एसोसिएशन, आपदा, IMA और ट्रेन्ड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये 4 एसोसिएशंस विच आर एफिलिएटेड टू द हेल्थ केयर सिस्टम
वो लोग ने इंडिपेंडेंटली वो लोग डिसाइड किया है टू बेसिकली व्हेन देयर फ्रस्ट्रेशन पब्लिक लोग को जानने देने के लिए कि वी आर हर्ट, तो इसका बारे में आई थिंक दी bodies will be able to comment much better than I do, because as an administration we are not purview to the strike or the suspension of routine medical services.